Hi everyone, Namaste. Welcome back to Angrezi Bitte with me, Pallavi Cham. So today's topic is PTA conversation between parents and teacher. All right. The student's name is Rishabh. It's an imaginary name that I've taken, and his parents, the mother and father, and his teacher. So Rishabh is a very well performing student, and the teacher is all praises for him. And the ongoing conversation is something that I've tried to explain, and I'm sure you're going to find this interesting. Okay, so the participants are Rishabh, that is the students, his parents, and the teacher. All right. So the parent first they greet the teacher saying, "Good morning, ma'am," या फिर गुड मॉर्निंग को तो सुप्रभात तो बोला नहीं जाता है, तो नमस्ते या गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है. यू कैन जस्ट से हेलो. राइट. Yes. So the teacher, she replies, "Good morning, Mr. and Mrs. Kapoor." Again, this is an imaginary thing. So please be seated. So you can say, "Please be seated. Please have your seats." All right. Or please take your seats. मतलब please बैठ जाइए. All right. Okay. So when being asked to sit, the parents are saying, "Thank you. Thank you, ma'am. धन्यवाद, ma'am." जो भी है. ठीक है. After the initial greetings, what is that? The kind of conversation that they have. Okay. So the teacher says, "All right. So Rishabh has performed really well this term as usual or as always." ठीक है, तो ऋषभ ने इस सत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमेशा की तरह. ठीक है, तो एज ऑलवेज या फिर एज यूजुअल इज हमेशा की तरह, इस सत्र इज दिस टर्म, ऑल राइट इज ठीक है. ओके, परफॉर्म्ड रियली वेल, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है. So the teacher says he is a star student of our school and we look upon him, या look up to him to achieve a top rank at the all India level. Alright, all India level is पूरे भारत के स्तर पे. look up to him, हम उससे उम्मीद करते हैं. look up to him is हम उससे उम्मीद करते हैं, हम ऋषभ से उम्मीद करते हैं कि वो ऑल इंडिया स्तर पे टॉप रैंक लाए स्कूल के लिए और अपने लिए. ठीक है. So the teacher says, "All right. So Rishabh has performed really well this term as usual." हमेशा की तरह ऋषभ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस टर्म में. He is a star student of our school and we look upon him या look up to him to achieve a top rank at the all India level. Okay, तो इस पे पेरेंट्स बोलते हैं थैंक यू. Alright, so continuing with the next set of conversation. So the teacher says, "All thanks to you." सब धन्यवाद आपको है, ये सब आपकी वजह से ही है. Alright, unless parents are keen on their children's studies and overall well-being, there isn't much that teachers can do. Okay, यह सब आपके कारण है. जब तक माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई और समग्र यानी कि समस्त कल्याण के प्रति सजग नहीं होते, तब तक शिक्षक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. ओके, ऑल थैंक्स टू यू, सारा थैंक्स आपको है, ये सब आपके वजह से हुआ है. ऐसे टीचर पेरेंट को बोल रही है. ठीक है. अनलेस पेरेंट्स आर कीन, कीन इज फोकस करना किसी चीज पे. ओके, या फिर सजग, सजग होना इज टू बी कीन. जब तक, अनलेस इज जब तक पेरेंट्स कीन ना हो अपने बच्चों की पढ़ाई एंड ओवरऑल वेलबीइंग. ओवरऑल वेलबीइंग इज ओवरऑल बच्चों का अच्छा होना. वेलबीइंग इज व्हाट? समग्र कल्याण. ओके, वेलबीइंग इज समस्त कल्याण, समग्र कल्याण. तो जब तक पेरेंट्स कीन हैं on their children's studies, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की पढ़ाई, their children's studies and overall well-being, समस्त कल्याण. well-being is कल्याण. जब तक पेरेंट्स कीन नहीं है, हाँ, अनलेस पेरेंट्स आर कीन, जब तक पेरेंट्स कीन ना हो अगर अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके वेल-बीइंग
के प्रति, तब तक टीचर्स ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. There isn't much that teachers can do. Is not much को we write it as isn't much. Okay? हाँ, there is not much that teachers can do. ज़्यादा कुछ, much is ज़्यादा कुछ टीचर्स नहीं कर सकते तब तक, unless parents are really focused on their children's studies as well as their children's well-being. Okay? If parents don't keep their children consistently motivated, they can get distracted quickly. जब तक, हाँ, अगर माता पिता अपने बच्चों को लगातार प्रेरित नहीं करते तो बच्चे जल्दी भटक सकते हैं. ओके? इफ, अगर पेरेंट्स, माँ बाप, डोंट कीप देयर चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड, तो इफ पेरेंट्स डोंट कीप देयर चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड, कंसिस्टेंटली इज लगातार, मोटिवेटेड इज प्रेरित. ओके? तो जब तक माँ बाप अपने बच्चों को लगातार प्रेरित नहीं रखते, they can get distracted quickly. Distraction is भटकाव, distracted, भटक जाना. Okay? तो if parents are not keen, अगर वो अपने बच्चे को लगातार प्रेरित नहीं रखते तो बच्चे बहुत जल्दी भटक सकते हैं. किस चीज़ से? पढ़ाई से. Okay? Quickly is जल्दी, distracted is भटकना. They can get, बच्चे भटक सकते हैं अगर पेरेंट्स लगातार मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो. सो ऑल थैंक्स टू यू. तो सारा कुछ आपको श्रेय है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे टीचर बोल रही है पेरेंट को. मतलब आपका बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप इतना ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चे का, आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चे को, इसलिए वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है. आप इतना नहीं ध्यान रख रहे होते, यानी कि पेरेंट्स अगर इतना ध्यान नहीं रखें तो देयर इजंट मच दैट टीचर्स कैन डू. इतना कुछ टीचर्स नहीं कर सकते. इट्स ऑल द माहौल दैट पेरेंट्स गिव दैट टीचर्स कैन गिव अ पुश टू इट एंड मेक द परफॉर्मेंस बेटर. ओके? So, the teacher says, all thanks to you. Unless parents are keen on their children's studies and overall well-being, there isn't much that teachers can do. If parents don't keep their children consistently motivated, they can get distracted very quickly. So, all thanks to you for doing such a great job. Okay? So the teacher is clearly impressed with Rishabh's consistently good performance, and she wants to know from the parent what is the reason behind his high motivational levels and high confidence levels. Okay, the teacher goes on to ask Rishabh's parents, so tell me, what keeps Rishabh consistently motivated to perform well? इसका मतलब क्या है? तो बताइए, ऋषभ को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित क्या करता है? What keeps him motivated? And more than that, what's the secret behind his confidence levels? And उससे भी ज़्यादा उसके आत्मविश्वास के पीछे क्या राज है? I would love to. I would को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं. I would love to. Okay, so I would love to share it. Yeah, I would like to share it. Okay, you can write it as like also. So I would like to share it with other parents as well. तो मैं यह जानकारी दूसरे माता पिता के साथ भी शेयर करना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी. ठीक? So tell me, तो बताइए, what keeps Rishabh consistently motivated? Consistently is लगातार, motivated is प्रेरित. What keeps Rishabh? क्या चीज़ है जो ऋषभ को लगातार प्रेरित रखता है? Alright, to perform well. Perform is प्रदर्शन, well is अच्छा. तो हमेशा जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऋषभ एग्जाम्स में, हर टर्म में, तो व्हाट इज कीपिंग हिम मोटिवेटेड?
she wants to know from his parents. And more than that, और उससे भी ज़्यादा, किस चीज़ से ज़्यादा? More than to know कि what keeps him consistently motivated. And more than that, उससे भी ज़्यादा, what's the secret? क्या रहस्य है? What's the secret? क्या रहस्य है behind his confidence levels? ऋषभ का जो आत्मविश्वास का स्तर है, लेवल इज स्तर, कॉन्फिडेंस इज आत्मविश्वास, बिहाइंड इज स्पीच है. तो ऋषभ का जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है, आत्मविश्वास का स्तर है, उसके पीछे क्या राज है? ऐसे वो टीचर से पेरेंट से पूछ रही है टीचर. ठीक, आई वुड लव टू शेयर इट, मैं ये चीज़ विथ अदर पेरेंट्स एज वेल, अदर पेरेंट्स, अन्य माता पिता एज वेल के साथ भी, एज वेल एज भी, ओके, टू शेयर इट, शेयर करना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू या आई वुड लव टू करना चाहूँगी, राइट. सो आई वुड लव टू शेयर इट विथ अदर पेरेंट्स एज वेल. मतलब आपका बेटा हमेशा ऐसा कैसे मोटिवेटेड रहता है, हमेशा इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करता है, उससे भी ज़्यादा उसका हाई कॉन्फिडेंस लेवल्स कैसे मेंटेन रहता है, आप मुझे बताइए, ताकि मैं बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करूँ, उनका बच्चा भी बहुत अच्छा आपके बच्चे की जैसे परफॉर्म करने लगे. ठीक, ओके. सो द टीचर आस्क्स टू ऋषभ's पेरेंट्स, so tell me, what keeps Rishabh consistently motivated to perform well, and more than that, what's the secret behind his confidence levels? I would love to share it with other parents as well. Okay? Okay. So when the teacher asks, tell me what is the secret behind confidence levels and motivation levels of Rishabh, how is he performing so well consistently, what keeps him motivated, alright? तो ऋषभ के फादर बोलते हैं टीचर को, the father says, ma'am, we believe every student, that is every child, has their own set of strengths and weaknesses. हम मानते हैं कि हर बच्चा या हर विद्यार्थी अपनी अलग, यानी कि अपना यूनिक, अपना खुद का ताकत और कमजोरियों के साथ आता है. एवरी पर्सन हैज देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ओके, ओके. वी बिलीव इज, हम विश्वास करते हैं, हम इस चीज को मानते हैं, हम इस बात में विश्वास करते हैं, राइट. वी बिलीव, यहाँ दैट भी यू कैन इंक्लूड, वी बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट, ओके. तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हर विद्यार्थी, दैट इज, जो कि हर बच्चा, हर विद्यार्थी यानी कि हर बच्चा, हैज देयर ओन, होता है उनका खुद का, स्ट्रेंथ्स, ताकत, ऑलराइट, ताकतें, एंड वीकनेसेस, कमजोरियां. हर विद्यार्थी, हर बच्चे का अपना ओन स्ट्रेंथ्स होता है, अपना ओन वीकनेसेस होता है. ठीक है. We never force Rishabh to achieve a certain level of marks or grades. हमने कभी भी ऋषभ पर दबाव नहीं डाला कि वह किसी निश्चित स्तर के अंक या ग्रेड हासिल करें. होता है ना, तुम्हें इतना अचीव करना, उसने इतना किया, इतना करो अचीव. तो वी नेवर पुट दैट काइंड ऑफ यार्ड स्टिक कि यू हैव टू अचीव दिस. हमने कभी भी वो प्रेशर नहीं डाला ऋषभ पर. वी, हमने नेवर, कभी नहीं, फोर्स ऋषभ, फोर्स दबाव डालना, राइट. सो वी नेवर फोर्स ऋषभ टू अचीव. अचीव इज पाना, अचीवमेंट इज कोई उपलब्धि को पाना, ओके. अचीव इज पाना. अ सर्टेन लेवल, सर्टेन लेवल इज एक निश्चित स्तर, इतना पर्टिकुलर तुम्हारा मार्क्स होना चाहिए, ये पर्टिकुलर, ये स्पेसिफिक तुम्हारा ग्रेड होना चाहिए. ऐसे हमने कभी भी ऋषभ पे फोर्स या प्रेशर नहीं डाला, राइट. सो वी नेवर फोर्स ऋषभ टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स और ग्रेड्स. यही अगर पास्ट टेंस में बात करना होता तो वी नेवर फोर्स्ड ऋषभ, हमने कभी भी ऋषभ पे ये दबाव नहीं डाला. वी हैव नेवर फोर्स्ड ऋषभ, या वी हैड नेवर फोर्स्ड ऋषभ. दैट वुड बी पास्ट. नाउ दिस इज प्रेजेंट, यू आर टेलिंग इन द प्रेजेंट थिंग, राइट. Coming to the next sentence, it's not that we don't want him to perform exceedingly well,
but we feel there shouldn't be any undue pressure. ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, वह मतलब कौन? ऋषभ। लेकिन हमें महसूस होता है या हमें ऐसा लगता है कि बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट दैट का मतलब ऐसा नहीं है। दैट वी डोंट वांट हिम टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। ओके, वेल इज अच्छा, एक्सीडिंगली इज बहुत, एक्सेस, अति, राइट। वी डोंट वांट हिम टू परफॉर्म इज प्रदर्शन। ओके, इट्स नॉट दैट ऐसा नहीं है। परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन, एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा, परफॉर्म प्रदर्शन, वेल अच्छा। तो व्हाट दे ट्राइंग टू से इज वी डोंट वांट हिम, हम नहीं चाहते, राइट। वी डोंट वांट हिम कि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। तो पूरा सेंटेंस का मतलब ये हुआ, इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट हिम टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ज़रूरत से ज़्यादा एज इन बहुत ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करे, हम वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ नहीं चाहते। बट लेकिन वी फील, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है, देयर शुडंट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, देयर शुडंट बी एनी अनड्यू प्रेशर। प्रेशर इज दबाव, एनी कोई भी, अनड्यू बेवजह का, दबाव नहीं होना चाहिए। ओके, so the father of the boy, that is Rishabh, says to the teacher, ma'am, we believe every student, that is every child, has their own set of strengths and weaknesses. We never force Rishabh to achieve a certain level of marks or grades. It's not that we don't want him to perform exceedingly well, but we feel there shouldn't be any undue pressure. Okay? It means to say we're not putting any undue pressure on our child. Our child is free to perform well, to do healthily well in whatever he's doing, and therefore he's getting good marks. Okay? तो टीचर पेरेंट्स का सब बात सुनती है, उसके बाद टीचर फिर पूछती है पेरेंट्स से, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कॉन्स्टेंट comparisons parents make between children, thinking they are motivating their kids या motivating their children. Okay? और आपको क्या लगता है, टीचर पूछ रही है पेरेंट्स से, और आपको क्या लगता है जब माता पिता बच्चों के बीच तुलना करते हैं, ये सोचते हुए कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, कि वो अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक, और आपको क्या लगता है, अबाउट, किस विषय में, एंड व्हाट डू यू थिंक, और आपको क्या लगता है, अबाउट, इस विषय में, तो कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपैरिजन इज तुलना, कांस्टेंट इज लगातार, लगातार तुलना करते रहते हैं, बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच लगातार तुलना होता रहता है, पेरेंट्स मेक, जो पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, कि वो तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, उसको ऐसा ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सोचते हुए पेरेंट्स ये सब क्यों बोलते हैं, ये सोचते हुए, थिंकिंग इस, ये सोचते हुए, दे आर मोटिवेटिंग देयर किड्स, वो अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, देयर किड्स, उनके बच्चे, मोटिवेटेड इज प्रेरित, मोटिवेटिंग इज प्रेरित, दे आर, वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कांस्टेंट कंपैरिजंस दैट पेरेंट्स मेक बिटवीन चिल्ड्रन, थिंकिंग दैट दे आर मोटिवेटिंग देयर किड्स। ओके, तो जब टीचर पूछती है कि आपको क्या लगता है, जब पेरेंट्स बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो इज इट अ राइट थिंग टू डू, डज इट पॉजिटिवली मोटिवेट देयर चिल्ड्रन, तो उस पे ऋषभ की माँ बोलती है, द मदर सेज दैट्स अ रियली रॉन्ग थिंग टू डू, वी फील। ओके, हमें लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है या बहुत ही गलत चीज़ है,
ठीक है. वी फील इज हमें लगता है. रियली रॉन्ग थिंग टू डू, ये करना बहुत ही गलत चीज है. रियली सच में, रॉन्ग थिंग गलत चीज, टू डू करना. ओके, दैट्स ये मतलब कंपैरिजन. ओके, सो दैट्स अ रियली रॉन्ग थिंग टू डू. वी फील we are just normal parents, but I've seen many highly educated parents also constantly comparing their children to others. हम तो बस साधारण माता पिता हैं, लेकिन मैंने कई उच्च शिक्षित माता पिता को भी देखा है जो लगातार अपने बच्चों की तुलना दूसरे से करते रहते हैं. ठीक है, वी आर जस्ट नॉर्मल पेरेंट्स, हम तो बस साधारण पेरेंट्स हैं. ओके, नॉर्मल साधारण पेरेंट्स इज अभिभावक, माँ बाप, माता पिता. ओके, बट लेकिन आई सीन, मैंने देखा है, मैनी कई सारे हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स, उच्च शिक्षित पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली, लगातार, यहाँ हु भी यू कैन ऐड, हु कॉन्स्टेंटली कीप ऑन कंपेयरिंग द चिल्ड्रन टू अदर्स, ऑल्सो यू कैन राइट. या फिर हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग, तुलना करते हैं देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को दूसरों के साथ, दूसरे बच्चे के साथ. ठीक है, सो वी जस्ट नॉर्मल पेरेंट्स, बट आई हैव सीन मेनी हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन टू अदर्स. ओके, this not only affects friendships and healthy relationships between children, but also develops an inferiority complex in your child. यह न सिर्फ बच्चों के बीच दोस्ती और स्वस्थ संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि आपके बच्चों में हीन भावना को भी विकसित करता है. राइट, दिस नॉट ओनली, यह न केवल, नॉट ओनली इज न केवल, अफेक्ट्स प्रभावित करता है, फ्रेंडशिप्स दोस्ती, हेल्दी रिलेशनशिप्स स्वस्थ रिश्ते, बिटवीन चिल्ड्रन इस बच्चों के बीच, बट ऑल्सो डेवलप्स, बट लेकिन और विकसित करता है किस चीज को, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? हीन भावना. इन योर चाइल्ड, आपके बच्चे में हीन भावना को विकसित करता है when parents keep on constantly comparing their children to others. Okay, so this not only affects friendships and healthy relationships between children, but also develops an inferiority complex in your child or in your children. Your child may feel they are less than someone else. आपका बच्चा महसूस कर सकता है कि वो किसी और से कम है. And this is a very wrong thing to do, especially as a parent. और ये चीज़ बहुत ही गलत बात है, especially तब, विशेषकर तब जब आप एक पेरेंट हैं, जब आप एक अभिभावक हैं. alright? Okay, your child, आपका बच्चा may feel, महसूस कर सकता है, they are less than someone else. someone else कोई और, they are less than, वो किसी से कम है, वो किसी से कम है, they are less than someone else, ऐसे आपका बच्चा महसूस कर सकता है. And this, और ये चीज is a very wrong thing to do करना very wrong thing, और ये चीज करना बहुत गलत बात है. This is a very wrong thing to do, ये चीज करना बहुत गलत बात है, especially विशेषकर तब जब आप एक पेरेंट हैं, जब आप एक माँ बाप हैं, जब आप एक अभिभावक हैं. तो ये चीज़ आप अपने बच्चे को हीन भावना विकसित करें, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसको डेवलप करें, यू मेकिंग देम फील लो दैन अदर चिल्ड्रन इन देयर पीयर ग्रुप. सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, स्पेशली व्हेन यू आर अ पेरेंट. ओके, सो द मदर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज ऋषभ, सेज टू द टीचर, That's what when the teacher had asked कि बच्चों के बीच में comparison जो parents करते हैं, तो is it right or wrong? She's asked for the parents' opinion, and this is what the mother has to say. That's a really wrong thing to do, we feel. We're just normal parents, but I've seen many highly educated parents as well who constantly keep on comparing their children to others.
This not only affects friendships and healthy relationships between children, but also develops an inferiority complex in your child or in your children. Your child may feel they are less than someone else, and this is a very wrong thing to do, especially when you're a parent. Okay? So the father says further, if we look at a classroom, say with 35 students, some will be good at studies, some at sports, some at art, some at writing poems, some at singing, some at planning and organizing things, some at managing issues. Some might be a good leader, and someone might have a very unique skill set, right? While board exams are an important milestone, agreed, but life doesn't entirely depend on them, right? अगर ऋषभ के फादर बोलते हैं, अगर हम एक कक्षा में देखें जहां मान लेते हैं कि 35 छात्र हैं, ठीक है, तो कुछ पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ खेलों में, कुछ कविता लिखने में, कुछ गाने में यानी कि संगीत में, कुछ चीज़ों को योजनाबद्ध और संगठित करने में, इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, कुछ समस्याओं को सुलझाने में. सारे बच्चे सारे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते. कुछ कुछ लोगों को आप देखेंगे एकदम शांति से, मेच्योरिटी से सॉल्व करते हुए. So that is a unique skill set. Some are very good at planning, organizing. Some are good at managing people, good at managing things. Some good at sports. So it's a mix of the whole thing, right? कोई अच्छा नेता हो सकता है और किसी के पास बहुत ही अनोखा कौशल हो सकता है. अनोखा इज यूनिक, डिफरेंट. कौशल, स्किल सेट, हुनर, राइट? माना कि बोर्ड परीक्षाएं एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, लेकिन पूरी जिंदगी तो उन पर निर्भर नहीं करती ना. ओके, इफ वी लुक एट तो ऋषभ's father says, if we look at, अगर हम देखें एक क्लासरूम को देखें, एक कक्षा को देखें, say with 35 students, मान लेते हैं जिसमें 35 बच्चे हैं. say is, बोलिए जैसे मान लेते हैं 35 बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं. some, कुछ will be good at, कुछ अच्छे होंगे. ओके, ये सब पे अप्लाई होता है. कुछ अच्छे होंगे पढ़ाई में, कुछ खेल में, स्पोर्ट्स इज खेल, आर्ट इज कला. सम एट राइटिंग पोएम्स, कुछ कविता लिखने में. सम एट सिंगिंग, कुछ बच्चे अच्छा गाना गा सकते हैं. सम एट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स. प्लानिंग इज प्लान करना, योजना बनाना. ऑर्गेनाइज, संगठित करना इज टू ऑर्गेनाइज. सम एट मैनेजिंग इश्यूज. मैनेजिंग इज बात को संभालना या फिर समस्याओं को सुलझाना. दैट इज टू मैनेज इश्यूज, मैनेज प्रॉब्लम्स. ओके, समवन माइट बी अ गुड लीडर. किसी में अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं, किसी में अच्छी नेतृत्व के गुण हो सकते हैं. दे मे बी गुड एट मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग थिंग्स, मेकिंग स्ट्रैटेजीज. समवन माइट हैव अ वेरी यूनिक स्किल सेट. Skill set is कौशल, unique is अनोखा, right? While board exams are an important milestone पड़ाव, important प्रमुख, तो agreed, माना. तो माना कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत एक important पड़ाव है. okay? But life doesn't entirely depend on them. But लेकिन life, जिंदगी, entirely, पूरी तरह doesn't depend, निर्भर नहीं होता on them. किस पर? बोर्ड एग्जाम पर. ठीक है? So, if we look at a classroom, say with 35 students, some will be good at studies, some at sports, some at art, some at writing poems, some at singing, some at planning and organizing things, some at managing issues. Some might have very good leadership qualities. That is, someone might be a good leader. Someone might have a very unique skill set, right?
So while board exams are an important milestone, agreed, माना इस बात को, but life doesn't entirely depend on them, right? ऐसे ऋषभ के फादर बोलते हैं टीचर को. ओके, तो ऋषभ के फादर आगे बोलते हैं, so for Rishabh, our strategy from his childhood until now has been for him to listen and learn attentively in class, do his homework well, clarify all his doubts, no matter how many times it takes or whom he needs to ask. Study well and give his best in studies. Study well and give his best in studies and exams. After that, whatever the results are, we are fine and happy with them. Okay? तो ऋषभ के लिए हमारा तरीका बचपन से अब तक यही रहा है कि वह कक्षा में ध्यान से सुने और सीखे, अपना होमवर्क अच्छे से करे, अपने सभी डाउट्स यानी कि शंकाओं को क्लियर करे, साफ करे, चाहे जितनी बार पूछना पड़े या जिससे भी पूछना पड़े. पढ़ाई अच्छी तरीके से करे और परीक्षा में अपना पूरी मेहनत लगाए. उसके बाद जो भी नतीजे आए, हम इससे खुश और संतुष्ट रहते हैं. ठीक है, तो दिस इज देयर स्ट्रैटेजी. सो तो फॉर ऋषभ के लिए आवर स्ट्रैटेजी, हमारा रणनीति, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही, अंटिल नाउ, अब तक, हैज बीन, मतलब ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति रहा है हमारा जब से ऋषभ बच्चा था और अब तक, अंटिल नाउ. ओके, टू लिसन एंड लर्न अटेंटिवली इन क्लास, कक्षा में ध्यान से सुने टीचर्स को क्या पढ़ा रहे हैं और उनसे पढ़े, अटेंटिवली, ध्यान से, मन लगा के. ऑलराइट. डू हिज होमवर्क वेल, अपना होमवर्क अच्छे से करे. क्लैरिफाई ऑल हिज डाउट्स, अपना सारा डाउट्स जो होता है पढ़ाई में उसको क्लैरिफाई करे. क्लैरिफाई टू क्लियर करना, डाउट्स क्लियर करना. ऑलराइट. नो मैटर हाउ मेनी टाइम इट टेक्स, मतलब चाहे जितनी बार भी पूछना पड़े अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और whom he needs to ask, या जिससे भी पूछना पड़े, जितनी बार पूछना पड़े, जिससे भी पूछना पड़े, नो मैटर. ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कितने बार अपना डाउट्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा या किस किस से पूछ के अपना डाउट्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा. अपना डाउट्स एकदम प्रॉपर क्लियरली क्लैरिफाई कर ले, अच्छे से पढ़ाई करे, स्टडी वेल एंड गिव हिज बेस्ट इन स्टडीज एंड एग्जाम्स. पढ़ाई में और परीक्षा में अपना बेस्ट दे, अपना सर्वोत्तम दे. ठीक है. आफ्टर दैट, उसके बाद, वॉट एवर द रिजल्ट्स आर, रिजल्ट्स, परिणाम, वॉट एवर, जो भी, उसके बाद जो भी परिणाम आए, वी आर फाइन एंड हैप्पी विद देम. देम इज रिजल्ट्स. हम उस रिजल्ट्स के साथ खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं. वी आर फाइन विथ इट, वी आर हैप्पी विथ इट. खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं. ओके. So for Rishabh, our strategy from his childhood until now has been to listen and learn attentively in class, do his homework well, clarify all his doubts, no matter how many times it takes or whom he needs to ask. Study well and give his best in studies and exams. Studies and exams. After that, whatever the results are, we are fine and happy with it. Okay? You're happy with them or happy with it. It means the results. We're happy with the results. So, Rishabh's mother goes on to add further, I don't stop him from playing games. मैं उसे खेलने से नहीं रोकती. Okay? Playing games. खेलने से I don't stop him. नहीं रोकती. मैं उसे नहीं रोकती. Okay? Not too much of it, but basic playtime with a bunch of other children rejuvenates him and keeps his mind fresh. बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलना
उसे तरोताज़ा कर देता है और उसका दिमाग फ्रेश रहता है, ठीक है। नॉट टू मच ऑफ इट, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट टू मच ऑफ इट, बहुत ज़्यादा नहीं, बट बेसिक प्ले टाइम, एक न्यूनतम खेलने का समय, विथ अ बंच ऑफ अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के साथ, समूह, बंच समूह ऑफ अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के साथ खेलने से रिजुवनेट्स हिम, रिजुवनेट मतलब तरोताज़ा, वापस उसमें एनर्जी भर देता है, ही गेट्स रिजुवनेटेड, वापस उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, वो फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाता है एंड फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, ऑलराइट। He plays badminton really well and we totally encourage it. तो ऋषभ बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है और हम इसे पूरी तरह से प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। He plays, वह खेलता है, बैडमिंटन really well, सच में बहुत अच्छा, and we, और हम totally, पूरी तरह, encourage it, इसको प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। किस चीज़ को? ऋषभ के बैडमिंटन खेलने को। Even during board exams, we believe there has to be a balance of good study, proper sleep, and a fresh mind through physical exercise of some kind. बोर्ड परीक्षा के दौरान भी हम मानते हैं कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी नींद और किसी न किसी शारीरिक व्यायाम का संतुलन होना चाहिए ताकि दिमाग फ्रेश रहे। Even during board exams, बोर्ड एग्जाम्स के दौरान भी, even is भी, during दौरान, we believe, हम मानते हैं, there has to be a balance, संतुलन होना चाहिए, there has to be a balance of, किस चीज़ का? good study, अच्छी पढ़ाई, proper sleep, अच्छी नींद, ओके, और फ्रेश दिमाग होना चाहिए, ताज़ा दिमाग, थ्रू, किसके थ्रू आएगा ताज़ा दिमाग? थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ सम काइंड, फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम किसी तरह का, ऑफ सम काइंड, किसी तरह का, ठीक है। सो आई डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, नॉट टू मच ऑफ इट, but basic playtime with a bunch of other children rejuvenates him and keeps his mind fresh. He plays badminton really well and we totally encourage it. Even during board exams, we believe there has to be a balance of good study, proper sleep, and a fresh mind through physical exercise of some kind. So, before the video gets too long, I think इसको हम 2 parts में करेंगे, तो इतना हम first part में रखेंगे, बाकी का जो मेरा प्रिपरेशन है उसको हम second part में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए। So, see you in my next part, okay?